कि हम लोग को चाहिए कि सीनियर आदमी ही चाहिए, सीनियरिटी और मेरिट। जस्ट 9-10 ईयर्स में वो यूडीसी का सैलरी ड्रॉ कर रहा था, और आज वो डायरेक्टर का पोस्ट में बैठना सही है क्या गलत है? तो IAS ऑफिसर जो बन के आता है उनको कमांड करेगा, कंट्रोल करेगा, ये एक्सेप्टेबल है क्या? यूथ लोग आप लोग देखिए, हमारा अरुणाचल का लोगों को दिक्कतें हुई है कुछ 4 दिन में, जब हम सारे स्टेट के सिविल सर्विस ऑफिसर्स हड़ताल पे थे, मास कैजुअल लीव पे थे। लेकिन इन दिक्कतों के पीछे भी एक जायज़ कारण है स्टेट के सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स के पास। हमारा फाइट जो है, our fight is basically to call for a system that is impartial, that gives opportunities to everyone based on merit, and a system that is not made favoring certain particular individuals. और इसी कारण से सारा स्टेट आज के दिन बहुत सारे आप लोग देख रहे हैं इश्यूज निकल रहे हैं। The main crux of all this agitation is to have a system in place that is impartial, that is objective. So इसी मुद्दे पे आते हुए हमारे काफ़ी सालों से from decades we have been petitioning the government, praying the government, we have submitted lots of representations, और इतने सालों के बाद भी कोई हल नहीं निकला है। तो आज मैं 4 कारणों को विस्तार से बताना चाहूँगा, जिसमें द फर्स्ट वुड बी the posting of director at urban local bodies directorate. Second is director IT issue. Third is DPCs, जिसके तहत हमारे ऑफिसेस का प्रमोशन हुआ जाता है. And fourth is the posting of APCS officers in the civil secretariat. तो सबसे पहले हम आते हैं डायरेक्टरेट ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़। 2022 में इस डिपार्टमेंट का बाइफिकेशन हुआ था टाउन प्लानिंग से, जिसमें शुरुआती दौर में एक सीनियर APCS ऑफिसर को डायरेक्टर बनाया गया था। फिर उसके बाद देयर वाज अनदर APCS ऑफिसर पोस्टेड, बट रिसेंटली अ वेरी जूनियर लेवल ऑफिसर्स फ्रॉम एन डिफरेंट डिपार्टमेंट, or not even a department, from a council, was posted as the director, superseding even the department officers and several other officers. So isme we have written to the government regarding this issue, but in the last meeting that was conducted under the chairmanship of Honorable Home Minister, it was assured that he will issue this address after consultation with Honorable CM sir. And till then, the incumbent, the APCS officer who was posted as director ULB should continue. But despite the assurance, on 21st April, that is the Civil Service Day, unfortunately our officer was released, and the other officer, a junior level officer, was posted as director. So that was one of the main reasons that we had to resort to such medium of protest. So for you to understand कि director ULB में क्या होता है, I'll just briefly point out what this office is and what is expected of this office. It is the function of the director ULB. There are lots of functions, but the few important functions are policy formulation and its implementation, urban planning and development, monitoring and regulation of urban local bodies, जो हमारे यहाँ पासीघाट म्यूनिसिपल काउंसिल है एंड ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, financial management and resource mobilization, implementation of central and state schemes, environmental management and sanitation, public service delivery, grievance redressal, etc. So just looking at the outline of the work that is expected of this office and the person posted in that, and seeing what happens in other states, I can give you examples of X many states and tell you who is posted in that post. So Director ULB, for example, in Assam is a senior ACS officer, in Meghalaya is a senior IS officer, Jammu Kashmir, State Civil Service officer, West Bengal, IS and West Bengal Civils. Similarly, Nagaland, Himachal, you take all over this country,
the post of director ULB is manned by a civil servant, whether it's IS officer or a senior state civil services officers. Now, what is the problem in posting a junior level officer from another department to the urban local bodies? Basically, the director ULB would be the controlling officer of all the municipal bodies. We have the Pasighat Municipal Council and Itanagar Municipal Corporations. And a senior level officer, either he's IS officer or a senior APCS officer, is usually the chief executive of the municipal bodies. And the director ULB, who currently is a junior level officer, he would be the controlling officer. So there will be issues of hierarchy, issues of controlling all these offices. And also, there are 47 notified urban areas in 25 districts, and where the executive engineer of UD department is the member secretary of DUDA, and DC, who is generally an IS officer or a senior APCS officer, is the chairman of the district urban development agency. So all these notified agencies would also come under direct control of the director ULB. So it is very much important and that a person of sufficient seniority should be posted in director ULB. Therefore, once again, APSOA requests that state government to review the decision and post an administrative officer, an IS officer, or senior state civil service officer of sufficient seniority to maintain proper hierarchy of the system from its initial stage. Next point is the posting of Director Information Technology Department. Now, this post is already an encadred post of the APCS officers. Till 2017, an APCS officer was posted as Director IT, but after his retirement, till the posting of a regular director, member secretary of the State IT Council was directed to look after the charges of IT department. However, and as I have already mentioned, it is an encadred post, but since 2017, no APCS officer has been posted as Director IT. But on September 23rd, 2022, an APCS admin grade officer was posted as Director IT. But unfortunately, on 27th September, this order was directed to be kept in abeyance. The APSOA, the Civil Service Officer Association, requests the government to immediately post an APCS officer in this cadre. What we believe that is, since this is an encadred post of the civil service officers of Arunachal Pradesh, there should not be any issue. The government has already passed an order for posting of officer into that department, but it has not been carried out. Third point is the delay in conduct of departmental promotions, DPCs. And one of the major issues of conducting DPCs is that, as we have seen in the past couple of years, DPCs only happen when we start agitating. So it's a very wrong precedent set, despite standing order of the government of today's, that DPCs should be regular and should be conducted in every 6 months. But in recent times, the DPCs of APCS officers have been hampered due to several reasons, and one of the most important reason is a 1986 notification of hard and soft postings of APCS officers in entry grade and senior grade, whereby this 1986 order of soft posting and hard posting is not applicable to just APCS officers. It is for the entire Group A officers of the state. But just for the sake of APCS officer, it has been made mandatory, that too very recently. In the last year, the DPC that was conducted,
it was made mandatory. Since 86, the clause of hard soft posting was never included for APCS officers too, and which is not being done for any other officers of the state. But since last year, it has been made mandatory that we should be going to hard and soft postings. And citing that as an example, our DPCs have been kept on hold. We would like to point out that such segregation of posting bills happens in several services, even in the central civil services, central all India services and all. But such postings are never tied with promotions of an officers. It is only considered for transfer and posting. But unfortunately, the APCS officers of the state are being victimized by including the hard and soft postings for our promotion. Not just promotions of regular grades, even our IS inductions have been delayed. Recently, 9 officers were inducted into IS, and it's a good news for the state and the fraternity, but we can see in the recent induction of officers that some of the officers were inducted after lapse of 4 to 5 years. So, like in other states, the delay is at the most 1 year for induction into central Indian Administrative Services, but in Arunachal, 3 to 4 years is a very common phenomena. So what happens after such delay is that it has a domino effect on the overall promotions of the entire fraternity. And when we look at the lowest grade, the entry grade officers, when they are not posted or promoted into higher grades, the vacancies don't happen. Agar vacancies nahi hongi, tab it also affects the unemployed youth of the country, of the state, whereby कि limited vacancies है और recruitment नहीं हो रही है, तो recruitment भी limited हो रही है. अगर vacancies खुलते हैं तो recruitment भी और ज़्यादा होंगी और बहुत सारे unemployed youth को भी मौका मिलेगा civil services में आने के लिए. Next point is the posting of entry grade officers as under secretary in the state civil secretariat. Now this is also an issue that is perplexing the fraternity because the government has already standing instructions on this. 2001 में और 2010 में हमारी सरकार ने नोटिफिकेशन जारी की हुई है कि कोई भी एंट्री ग्रेड ऑफिसर्स, APCS ऑफिसर्स जो CO रैंक के ऑफिसर्स हैं, जिनका 4 साल हो चुका है सर्विस में, they can be posted as under secretary in the state civil secretariat. जो 2 बार ऑर्डर्स निकल चुकी हैं, 2001 में, 2010 में, आज 2023 है, लेकिन आज तक इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है. तो स्टिल द मिनिमम रिक्वायरमेंट आज के दिन जो हो रहा है कि ओनली ऑफिसर्स ऑफ द सीनियर ग्रेड हु आर ESC इक्विवेलेंट आर बीइंग पोस्टेड एज अंडर सेक्रेटरी. सो देयर इज क्लियर कट गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस, बट द गवर्नमेंट इज not following its own orders. So these are the 4 to 5 broad topics that we would like to be shared with you. Just to summarize, the posting of Director Urban Local Bodies, the posting of Director IT, our DPCs, and posting of integrated officers into the Civil Secretariat. हमारा जो APCS ऑफिसर जो बैठते हैं 93 जो अभी जिसको ट्रांसफ़र किया गया है, उन्होंने जनवरी 20 तारीख को ज्वाइन किया है एज ए डायरेक्टर ULB. जनवरी को उनको मतलब फरवरी मार्च महीना में ही उनको फिर ट्रांसफ़र आउट किया गया है. इसलिए हम लोग नाराज़ हैं. और पहले हमारा वो DC OLD योमी डिस्ट्रिक्ट में 3-4 साल बैठ चुका था. ऐसा ऑफिसर को विदिन ज्वाइनिंग 2 मंथ्स में उसको हटाया गया है. वो हमारा बोलूँगा कि हमारा इनकेडर पोस्ट तो नहीं है, APCS का नहीं है, किसी का भी नहीं है, लेकिन जिसे हमारा स्पोक्स पर्सन ने बोला है, हमारा हायरार्की को मेंटेन करने के लिए चेन ऑफ कमांड, क्योंकि अगर वो अभी डायरेक्टर ULB जो है जिसको लाया गया है, थ्रू ए रिलायबल सोर्स वी हैव कम टू नो कि वो UDC रैंक में असिस्टेंट ऑडिट एंड पेंशन डिपार्टमेंट में 2004 को ज्वाइन किया है. UDC जहाँ
उस समय का जो स्केल था 4500 था। वो जो है कुछ एग्जैक्ट ईयर को याद नहीं है, 2010-11 को सुनने में आया है एग्जैक्ट। उसमें फाइनेंशियल अकाउंट ऑफिसर हमारा IT काउंसिल और E-गवर्नेंस में गया है, तो एज ए और असिस्टेंट डायरेक्टर बन के गया था बोला है। फिर विदिन 2-3 ईयर्स में वो डिप्टी डायरेक्टर भी नहीं बन के वो जॉइंट डायरेक्टर बना है बोला है। वो जॉइंट डायरेक्टर भी डिपार्टमेंट नहीं, वो काउंसिल है। आप लोग एक मैं जस्ट क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट अलग काउंसिल जो ऑटोनोमस बॉडी है, जैसे कि हमारा फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन होता है, सोशल वेलफेयर बोर्ड जैसा होता है, लेबर बोर्ड जैसा होता है और स्टेट वुमेन कमीशन जैसा ऑटोनोमस बॉडी। वहाँ से एक आदमी को जस्ट उनका सर्विस काउंट किया जाए तो 2004 से लेके अभी तक 19 ईयर्स में वो डायरेक्टर बन के वो जिसका नीचे में जिसे बोला है कि IAS ऑफिसर लोग कैसे काम करेंगे, क्या वो उन लोग मतलब ये भी मैं बोलूँगा कि वो कौन सा UPSC एग्ज़ाम दे के आया है क्या, या APCS एग्ज़ाम दे के आया है क्या, जो IAS ऑफिसर को कमांड करेगा। जो सीनियर APCS ऑफिसर जो जिसको डिस्प्लेस अभी जो ट्रांसफ़र किया गया है, APCS टॉपर ऑफ 1993 का टॉपर है। ऐसा आदमी का जगह में लाने के लिए कि हम लोग को चाहिए कि सीनियर आदमी ही चाहिए, सीनियरिटी और मेरिट। अरुणाचल का जनता ये सुनिए कि अभी जस्ट 9-10 ईयर्स में वो UDC का सैलरी ड्रॉ कर रहा था, वो आज वो डायरेक्टर का पोस्ट में बैठना सही है क्या गलत है। और 93 से लेकर अभी तक 30 ईयर्स लगा है। हमारा जो ग्रुप A ऑफिसर ये बनता है, जो बन के घुसा है 93 वाला को, और IAS ऑफिसर जो बन के आता है उनको कमांड करेगा, कंट्रोल करेगा, ये एक्सेप्टेबल है क्या यूथ लोग? आप लोग देखिए, हमारा अरुणाचल का जनता ये हम लोग उसको अपोज कर रहा है, क्योंकि हमारा बाहर में हमारा सरकारी वी आर थैंकफुल कि बहुत स्ट्रीम लाइन भी लाया है, लाइक APSA भी इस्टेब्लिश करके कुछ बहुत अच्छा काम किया है। और स्पेशली हमारा APCS ऑफिसर को लवासना में ट्रेनिंग देकर बहुत बढ़िया हुआ है। लेकिन दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट इज रियली डिमोरलाइजिंग, और ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। लगता है कि वी हैव द एवरी रीजन टू बिलीव कि हमारा टॉप जो बॉस जो बैठा हुआ है उनको मिसलीड किया जा रहा है, मिसगाइड किया जा रहा है, लॉ को मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। इसका वजह से हम लोग अपोज है। जो आदमी मेरिट भी नहीं हुआ, एग्जाम देके भी नहीं आया है, प्रॉपर UPSC APPSC होकर नहीं होकर, उसका अंदर में कैसे APCS और IAS ऑफिसर लोग काम करेंगे? इसलिए हम लोग अपोज कर रहा है। ये एक बात। और दूसरा बात जो है, हम लोग का जो जैसे कि DPC में जो डिले हुआ, डायरेक्टर IT का लाभ लेकर जस्ट मैं एग्जाम्पल दे दूंगा। सपोज एन एग्जाम्पल, हमारा वाइस चांसलर राजीव गांधी यूनिवर्सिटी आज रिटायर हुआ है, एग्जाम्पल पे दे रहा, तो उसको जब रिटायर होता है तो वहाँ पे कोई एलिजिबल वाला आदमी नहीं है बोल के नेरिस का डायरेक्टर को चार्ज लेने के लिए बोलता है, कुछ फॉर टाइम भी, कुछ फॉर सम टाइम, टिल पोस्टिंग ऑफ रेगुलर वाइस चांसलर। तो वो जिसको चार्ज दिया है नेरिस का डायरेक्टर जो है, मतलब इनडेफिनेट पीरियड RGU का वाइस चांसलर बन के बेटेगा बोलने से ये सही है क्या गलत है क्या? आप लोग उसको देखिएगा और सुनिए, ये आप लोग देख के और सोचिएगा उसको। और अभी वाइस चांसलर राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का आ गया, उसको भी ज्वाइनिंग करने नहीं दे रहा है नेरिस का डायरेक्टर जो है। एग्जाम्पल में बोल रहा हूँ, उसको मिसकोट बात कीजिएगा। और यू आर नॉट ड्रॉइंग योर सैलरी फ्रॉम राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एज वाइस चांसलर, यू आर ड्रॉइंग योर सैलरी फ्रॉम नेरिस एज डायरेक्टर, बट यू आर नॉट लेटिंग वाइस चांसलर RGU टू ज्वाइन। ये सही है क्या गलत है? ऐसे ही है हमारा APCS ऑफिसर का इनकेडर डायरेक्टर IT है, वो जो ऑफिसर जो बैठा हुआ है पिछला 7-8 ईयर से बैठा हुआ है, वो उनका IT काउंसिल का है, वो डायरेक्टर। इसलिए कोई लोग मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना है कि APCS ऑफिसर्स लोग पूरा डायरेक्टर पोस्ट को चुनने के लिए हम लोग नहीं चुन रहा है, उसमें हम लोग हमारा पोस्ट को ब्लॉक किया जा रहा है, इसलिए हम लोग नाराज है। और अनदर थिंग, हमारा जो स्पोक्स पर्सन ने जो बताया गया कि हमारा जो 1986 का पॉलिसीज़ को लेकर जो DPC में रुकावट डाल रहा है, ये नॉट ओनली फॉर APCS ऑफिसर्स, पूरा डिपार्टमेंट के लिए लागू होना चाहिए। ये किसी भी डिपार्टमेंट को लागू नहीं किया गया है, ग्रुप A ऑफिसर्स और APCS ऑफिसर्स को भी कभी लागू नहीं हुआ है। बहुत लोग IAS इंडक्शन भी हो गया है, रिटायर भी हो गया। दिस इज फॉर द सेकेंड टाइम। ये अननेसेसरी हम लोग को लगता है कि ये लागू किया जा रहा है, क्योंकि 1986 में जो हार्ड बेल सॉफ्ट बेल्स जो डिफाइन किया गया है, डेफिनेशन बोले जाए
तो उस समय में 45 प्लेसेस था जहाँ पे रास्ता नहीं था, जहाँ पे गाड़ी नहीं जा सकता था, स्कूल नहीं था, मेडिकल नहीं था, लाइट नहीं था, 45 प्लेसेस था। तब हमारा ऑफिसर्स भी बहुत कम हुआ करता था। अभी दोज प्लेसेस व्हिच वर डिक्लेयर एज और को हार्ड बेल्ट आर सॉफ्ट बेल्ट। एग्जाम्पल इज हमारा क्या बोलता है पके केसंग, आप देखिए आज वो पैरामीटर जाने से नहीं होगा। और हमारा ऑफिसर्स वी हैव मोर देन 300 ऑफिसर्स इन एंट्री ग्रेड एंड सीनियर ग्रेड ऑफिसर्स है। उसमें अभी अगर देखा जाएगा ऑथोरिटी शुड, मतलब हम लोग रिक्वेस्ट करता है कि मालूम होना है कि हाउ मेनी प्लेसेस आर देयर ना हार्ड पोस्टिंग। हार्ड प्लेसेस जगह नॉट मोर देन इवन 15 या 20 आज का दिन में, वो पैरामीटर से जाने से उस बेसिस में लेकर। और हमारा ऑफिसर को दैट इज वन थिंग। द सेकेंड थिंग इज ट्रांसफर पोस्टिंग को डिटर्मिनेशन कौन करता है? आप खुद ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं, खुद जिसको कहा करना आप खुद करते हैं, करके आप वहाँ हार्ड पोस्टिंग नहीं गया है बोल के आज अचानक में ये रूल कैसे लागू करके हमारा ऑफिसर्स लोग को डीपीसी डिले हो रहा है। डीपीसी डिले होने की वजह से जैसे हमारे स्पोक्स पर्सन ने बोला है कि डाउन द लाइन इट इज इफेक्टिंग एवरीवन, क्योंकि वहाँ से सीओ लोग जो इंटीग्रेट होता है वो ईएसी बन नहीं पा रहा है। और वो नहीं बन पाने का वजह से फ्रेश जो ग्रेजुएट जो एपीसीएस में अपेयर करना है, जो वैकेंसी नहीं होने की वजह से एग्जाम में हमारा फ्रेश यूथ लोग को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, इसलिए इट इज़ अफेक्टिंग एवरीवन। दिस इज वन ऑफ आवर कंसर्न्स है। तो उसके बाद तो आई थिंक ऑल द पॉइंट्स हैव बीन कवर्ड। So basically, your purchase is end that ना, आप लोग खत्म हो गए काम। So, is there any response from the state government for the dialogue? Pardon? Is there any response from the state government for dialogue? As of now, उसमें ऐसा है, गवर्नमेंट हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसलिए भेजना पड़ा है कि वी हैव सबमिटेड सो मेनी रिप्रेजेंटेशंस, डिस्कशंस भी बहुत हुआ है और हम लोग अल्टीमेटम भी दिया है। देने के बाद ऑन 7 अप्रैल वी हैड अ मीटिंग, इट वाज चेयर बाय ऑनरेबल होम मिनिस्टर। उसका माइन्यूट्स भी आप लोग को दे देगा, स्पेशली द प्रिंट मीडिया को, हमारा पूरा जो जितना हुआ है डॉक्यूमेंट्स को, ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होने के लिए। उसके बाद अचानक उसमें क्लियरली लिखा है कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने बोला है कि टिल मीटिंग ऑफ द चीफ मिनिस्टर, मीटिंग को चीफ मिनिस्टर को बात करके हमारा ऑफिसर जो है कंटिन्यू करेगा एज डायरेक्टर यूएलबी। उसको अचानक में रिलीज किया गया है। फिर बोलने में सुनने में आया है कि उनको खुद एप्लीकेशन लिखा था रिलीज करने के लिए, उनको भी मजबूरी किया गया है। इसलिए एसोसिएशन बहुत उसको नहीं मानता है, किसी को दबाव में डाल के वो भी 2-3 महीना सिर्फ वहाँ बैठने दिया है। वो भी 30 ईयर सर्विस वाला को ऑफिसर को ऐसा करना सही नहीं है बोलकर हम लोग अपोज कर रहे हैं। आप लोग का ये मास कैलेंडर का एंड हो गया ना, calendar के वो तो कल खत्म हो गया। क्या कहते हो? अभी आप लोग का गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या है? आप लोग का डिमांड क्या है? टिल दैट गवर्नमेंट हम लोग को डायलॉग करने या डिस्कस करेगा बोल के नेगोशिएशन कर, नॉट नेगोशिएशन, टॉक करेगा, इश्यूज़ क्या है वो अभी तक आया नहीं। माइट बी द रीज़न कि ऑनरेबल स्पोक्स पर्सन होम मिनिस्टर जो इनिशिएट किया था, वी हैड 2 राउंड ऑफ सिटिंग विद ऑनरेबल होम मिनिस्टर विद स्पोक्स पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट, तो वो भी आउट ऑफ स्टेशन है एंड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भी बाहर में हैं। तो इसलिए वी एक्सपेक्टेड कि जब हम लोग मास कैजुअल लीव जाते हैं और हमारा जो अप्सुआ का जो मेंबर्स हैं वो सर्कल ऑफिसर, EAC, ADC, DCs, देन द डायरेक्टर्स, देन एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरीज, बहुत लोग हैं, नियरली 500 ये कैडर्स हैं हमारे। तो हम लोग भी ये उम्मीद करते थे कि वो उन लोग बुलाएंगे, व्हाट समस्या क्या है, इश्यूज़ क्या हैं। तो टिल डेट नो कॉल्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। एक्चुअली 24 अप्रैल में जब पंचायती राज का प्रोग्राम सीएम आए, वहाँ पे मैंने सवाल रखा था सर से कि जो आपका एसोसिएशन है कल से 25 से आपका, क्योंकि हाथों का जो वो हो रहा था कैजुअली वालों मास कैजुअली ले रहा था, तो सर का तरफ से कहा जा रहा था कि मीडिया को उन्होंने देखा है, चीफ सेक्रेटरी से बात करेंगे। जैसे कल इनको तो आपने आंसर दे देंगे, गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, बट एज सीएम ने खुद कहा था कि वो चीफ सेक्रेटरी से बात करेंगे, तो विदिन ये 4 डेज में कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। नहीं, विदिन दिस 4 days में वी हैवंट रिसीव एनी कॉल फ्रॉम द मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट, CS से या चीफ मिनिस्टर से हम लोग को कुछ कवर नहीं आया।
अभी मेरा ये सेक्रेटरी इंकम ने भी बता दिया कि जब होम मिनिस्टर के साथ में एंड वेयर इन लर्नेड चीफ सेक्रेटरी वाज आल्सो देयर, उसमें स्पेसिफिकली माइनूट्स भी ड्रॉ किया था जो मीतो दिर्ची उसका नाम है, जो 1993 का बैच का टॉपर था. सो he will continue as a director ULB, and that was minutes were drawn under कुछ चीफ सेक्रेटरी सर ने कुछ अप्रूव करके उसको इशू किया था. सो वी टोट कि ओके जो हम लोग का डिमांड रिक्वेस्ट जो जेन्युइन है तो उन लोग भी कंप्लाई किया, लेकिन इट वाज नॉट लाइक दैट. तो उसको देखा है विद इन एग्जैक्टली कब 21 को उसको रिलीज कर दी. यस यस, डिस्पाइट गिविंग एश्योरेंस, और उसका माइनट्स भी है. इन दैट माइनट्स वो मीटिंग भी डेट वाज चेयर्ड बाय द ऑनरेबल होम मिनिस्टर, वेयर इन आवर लर्नेड चीफ सेक्रेटरी इज ऑल्सो दी. सर एक क्वेश्चन था, जैसे ये जो आप लोगों ने जो मिसमैनेजमेंट कहा, काइंड ऑफ जो मैनेजमेंट अच्छी तरह से जो सरकार नहीं कर पा रही है, अरुणाचल प्रदेश सरकार, तो ये कब से स्टार्ट हुआ है? जिस तरह से आप लोगों का फेयरवेल हो रहा है, किसी को पोस्टिंग करना, कब से स्टार्ट हुआ है सर? हम लोग उसको मिस मैनेजमेंट नहीं बोलेंगे. उसमें जो किया जा रहा है कोई हमारा मिसलीड किया जा रहा है, मिसलीड और मिस इंटरप्रेट करके मिसगाइड किया जा रहा है. हमारा स्पेशली टॉप जो पॉलिटिकल बॉस जो बैठे हुए हैं उनको, क्योंकि उनका टाइम भी नहीं होता है, जिसका वजह से मतलब ये हो रहा है. एग्जैक्टली तो ये बहुत साल से पहले जो तोरा भी था, एंड वी नेवर थॉट ऑफ दिस हिस्टोरिक कि हम कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आने के लिए हम लोग नहीं सोचा है. नेवर एवर इन मतलब हमारा एसोसिएशन का हिस्ट्री में कभी इतना ये मतलब सिचुएशन में कभी नहीं आया. सर एक इंटरप्ट करना चाहती हूँ इसमें, क्योंकि अभी लाखों ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो आपके जैसे ऑफिसर्स बनना चाहते हैं, बाहर बैठे हुए हैं. तो इस तरह का माहौल अब जब प्रेस के सामने आ रहा है तो कहीं ना कहीं से गलत मैसेज तो जाएगा. इसके बाद क्या हम ये बोल सकते हैं कि आप लोगों के अंदर कुछ पॉलिटिशियंस लोगों का कुछ पॉलिटिक्स चल रहा है जिसकी वजह से इस तरह से हो रहा है? सबसे पहले हम लोग जो हमारे यूथ लोग जो स्ट्रीट में फाइट करे, जो हल्ला गुला करे, इशू रेज कर रहा है, उन लोग का भलाई के लिए हम लोग बात कर रहे हैं. स्ट्रीमलाइन करके सिस्टम जो अगर स्ट्रीमलाइन होगा, बिकॉज फॉर एवरीथिंग देयर आर एस्टैब्लिश्ड गाइडलाइंस, एस्टैब्लिश्ड मैनुअल्स, एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स, एस्टैब्लिश्ड नोटिफिकेशंस, और जो ऑलरेडी बना के रखा हो एक्सपर्ट लोग बनाए वो जब वो मतलब कन्वेंशनल हायरार्की से, कन्वेंशनल प्रोटोकॉल से पुट इन प्लेस इन द सिस्टम, तो उसको जब गड़बड़ होता है तो हमारा यूथ्स लोग के लिए भी बहुत गलत होगा. हम लोग का साथ जो गलत हो रहा है कल को भी होगा. उन लोग का अच्छाई के लिए हम लोग कर रहा है. नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स. हम लोग पॉलिटिक्स से कुछ लेन देन नहीं है. हमारा रिटिन में एवरीथिंग है, एवरीथिंग यू कैन चेक, क्रॉस, वेरीफाई. हम लोग पॉलिटिक्स से कुछ लेन देन नहीं है, क्योंकि वी कंसिडर एज ए स्टेट का जो टॉप एग्जाम दे के हम लोग आते हैं. तो आने के बाद हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि सिस्टम इज रन एज एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. तो जब गड़बड़ होता है बिकॉज इट अफेक्ट्स अल्टीमेटली, लाइक अभी आप लोग देखा है पिछला 4 दिन बंद होने का वजह से हमारा कॉन्ट्रैक्टर्स लोग, हमारा बिजनेसमैन लोग जो टेंडर करना था, हमारा घर तक, हम सब का घर धार डिस्ट्रिक्ट में एफिडेविट साइन करने के लिए, काउंटर साइन करने के लिए इतना आना पड़ा. किसी को एसटी सर्टिफिकेट मिलना था, टाइमली नहीं मिला. बर्थडे सर्टिफिकेट मिलना था, इनकम सर्टिफिकेट, डिपेंडेंट सर्टिफिकेट, एनओसी, स्कूल एडमिशन लेट हो रहा है. किसी को इनलाइन परमिट जो मिलना था वो भी नहीं मिल पाया. पब्लिक अल्टीमेटली इट इज द पब्लिक व्हिच सफर्स बिकॉज सिस्टम गड़बड़ होने की वजह से. वी वांट टू इंश्योर दैट कि हमारा पब्लिक पीपल स्टैंडिंग एट द लास्ट माइल शुड बेनिफिट फ्रॉम आवर सर्विस डिलीवरी. तो उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए हम लोग कर रहा है. इसलिए मजबूरी हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आना पड़ा. हम लोग आने का मन नहीं तो वी आर बाउंड टू कम हियर. शायद हम लोग का ये जो रिक्रूटमेंट इस तरह से डिपार्टमेंट में या फिर कुछ भी डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट रूल होता है, आरा होता है, या फिर प्रमोशन का कुछ रूल होता है, तो उसमें कुछ आपका ऐसे कुछ फ्रेम गाइडेंस नहीं है जिसके बदौलत आप लोग या लीगली फाइट करके उसको ये केस रिजोल्व कर सके, या फिर आप लोग गवर्नमेंट को ही रूल है कि सीएम का वहाँ से एक ऑर्डर जाना है देन उसको हटाना है? तो उसका मतलब रूल्स जो है, रूल को वायलेट किया गया है, मिसलीड मिसगाइड करके किया गया. यूडीसी नहीं है, यूडीसी रैंक काम कर रहा है, नॉट एग्जैक्टली यूडीसी. ही वाज ए असिस्टेंट ऑडिटर इन ऑडिट एंड पेंशन डिपार्टमेंट. 2004 में घुसा है.
और यूडीसी रैंक का और 1993 का जो एपीसीएस टॉपर को उसका चार्ज में, और आज उनका अंडर में आईएएस ऑफिसर लोग उनका अंडर में बैठेगा। ये हमारा यूथ को तो एक्सेप्टेबल नहीं हो, उस समाज को एक्सेप्ट कभी नहीं हो, कोई भी उसको रेशनल थिंकिंग जो है। और विद इन एपीसीएस एग्जाम में उनका रोल नंबर कहाँ है, कौन सा डेट को इंटरव्यू दिया है, कौन सा डेट में उनका डीपीसी हुआ है। बिकॉज वी कैन पीपल हु आर सिटिंग हियर आवर फ्रेंड्स, वी कैन प्रोड्यूस किस एडवर्टाइजमेंट कब हुआ है। तो बिना एपीसीएस एग्जाम देते हुए, बिना यूपीएससी एग्जाम देके और डायरेक्ट अचानक में वहाँ पर उड़ के विद इन 19 ईयर्स ऑफ हिज एंट्री इनटू सर्विस कमांडिंग द डिपार्टमेंट, ये इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। आई थिंक एवरीवन विल नॉट एग्री टू दिस। सर मेरा क्वेश्चन वही है कि मतलब आप लोग एज एन अपोस्ट आप लोग एज लीगली क्यों इसको नहीं इश्यूज को रेस नहीं कर रहे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि वो कुछ ना कुछ मिस्टेक या मिसगाइड करके हुआ है, गलत तरीका से हुआ है, तो आप लीगली उसको क्यों नहीं जा रहे हैं। मेरे साथ स्टेट गवर्नमेंट को ही क्यों अपील कर रहा है कि वो लोग अपना उधर से एक ऑर्डर दो, देन उसको निकालो। आपने जैसे कहा है कि जो आरआर के प्रोविजंस को लेके आप लीगली क्यों नहीं जा रहे, सो वो भी एक माध्यम है जिसको अप्सुआ कंसिडर कर रही है। लेकिन हमें इस देश में सबको पता है कि ऐसी चीज़ों का क्या हो जाता है। जुडिशरी शुड बी आई थिंक द लास्ट रिकोर्स, बिकॉज बहुत सारे केसेस हैं, मैं आपको उदाहरण पे उदाहरण दे दूंगा कि जो सालों साल अटक गए हैं, कोई मीनिंगफुल कंक्लूजन पे नहीं आया है, जबकि ये सारे उलझनों का, समस्याओं का हल किसके पास है? सरकार, जो आज की सरकार है उसके पास है। तो अगर वो हमारी जो जेन्युइन राइटफुल डिमांड्स, रिक्वेस्ट्स हैं, उसको अगर स्वीकार करती है तो इन सारी चीज़ों का कोई मायना नहीं रह जाता है कि हम काहे अपना सबका समय व्यर्थ करते हुए जुडिशरी के पीछे जाए। तो द थिंग इज़, if this doesn't work out, if our request, prayers, petitions don't work out, that is definitely a recourse that probably in the future would be considered by the association. But that is the last recourse that we would like to adopt, because we are also part of this today's government. We know ki whose decision would be final in all of these issues, and we are rightfully praying to those authorities to consider what is genuine. And I'm sure they also have able minds, rational minds, to consider what is a rational and genuine demand. सेकंड में कि आप किस तरह से वो ये आरएस ऑफ पोस्टिंग का जो इशू, जो रीज़न आप बता रहा था कि विच इज वन ऑफ द रीज़न जो डीपीसी में भी शायद जो डिले करा है, तो वेरस आपको भी शायद पता होगा कि बहुत सारे यहाँ ऑफिसर्स है जो इस रूल को एग्जैक्टली डिनाई ही करते हैं, क्योंकि उनको भी जाना नहीं होता है। जैसे एग्जांपल दे देता, कैपिटल में हर किसी को आना होता है, तो समवेयर डोंट यू फील कि आपका ऑफिसर्स में ही वो मेंटालिटी बैठा हुआ है, जिससे कारण से ये इश्यूज निकल रहे हैं। उसका तो ऐसा नहीं, वी वेलकम दैट कि हाफ बेल्ट सॉफ्ट बेल्ट अगर रूल्स है तो लागू करना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली ट्रांसफर पोस्टिंग को कौन करता है? ऑफिसर्स तो खुद नहीं करते हैं। और आज का दिन में वी हैव वर्क आउट ऑल्सो, हमारा 300 प्लस ऑफिसर्स 1986 का जो 45 प्लेसेस को जो आज अगर देखा जाए कि आज सॉफ्ट बेल्ट रहा मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, एक दो पोस्ट को छोड़ के, कि उसमें लगेगा तो हमारा 18 to 20 ईयर्स लगता है सबको अगर हाफ पोस्टिंग जाना होगा। तो इट विल बी ए chaos. It has never worked in any of the department. किसी भी डिपार्टमेंट में कभी किसी के डिपार्टमेंट में लागू नहीं हुआ है, और एपीसीएस को भी कभी लागू नहीं है। दिस फॉर द सेकेंड टाइम दिस इशू इज बीइंग रेज्ड। आप 1986 यूनियन टेरिटरी समय का बनाया हुआ 86 का जो 1 जुलाई 1986 का रूल आज लागू कर रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम।